کوئٹہ کے علاقے سریاب میں قمبرانی روڈ پر گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز ندیم کوثر سے۔ ندیم، بتائے گا کس پیمانے پر یہ آگ لگی ہے اور ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی؟ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، جو آگ ہے وہ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں قمبرانی روڈ پر لگی ہے اور اس وقت جو فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فائر ٹینڈر بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ جو فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ یہ پلاسٹک کے جو اشیاء ہوتی ہیں، اسکریپ ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ آگ لگی ہے اور جو ہے اب آگ میں کافی زیادہ پھیل گئی ہے اور فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں، ان کی جو عملہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سے آگ پر قابو پایا جا سکے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ جی ندیم کوثر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ الاسف سکوائر پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف ایک اور کارروائی کی گئی ہے۔ کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، کیا تفصیل ہے اس کارروائی سے متعلق؟ جی سارا، سہراب گوٹ پر الاسف اسکوائر ہے جہاں پر افغان باشندوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ ہماری بات ہوئی پولیس حکام سے تو بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر آپریشن کیا گیا جس میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا اور جو الاسف اسکوائر کے راستے آنے جانے کے ان کو سیل کر دیے گئے تھے، جبکہ اس کے بعد جو وہاں پہ رہائش پذیر افراد ہیں ان کے شناختی دستاویزات طلب کیے گئے اور جن افراد کے شناختی دستاویزات بالکل کریکٹ تھے ان کو چھوڑ دیے گئے، جبکہ کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اپنے PRO کارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پر پولیس کام بتاتے ہیں کہ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے گیا اور انہیں اس وقت مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر اس وقت 45 افراد کو حراست میں لیے گئے اس آپریشن کے دوران، جو کہ ابھی تک غیر قانونی طور پر مقیم تھے اور وہ ابھی تک پولیس کو کسی بھی قسم کی اپنی سفری دستاویزات یا یہاں پہ پاکستان میں رہنے کی شناختی دستاویزات پولیس کو پیش نہیں کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے راہیل، ایک اور خبر کی تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے کراچی میں، نیٹو جیٹی فلائی اوور پر پولیس مقابلہ ہوا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی مرشد، اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی SSP کیماڑی فیضان علی سے، تو یہ بتاتے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان تھے جو کہ ایک ڈبل کیبن گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈبل کیبن گاڑی نے انہیں ہٹ کیا، جبکہ اسی دوران یہاں پہ گشت سے جو پولیس اہلکار موجود تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دونوں ملزمان ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ وہ SSP کیماڑی یہ بتاتے ہیں کہ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ جو جس شہری کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بھی اس وقت پولیس کے ساتھ تھانے میں موجود ہے۔ لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں، جبکہ زخمی کو بھی فرسٹ ایڈ کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا راہیل سلمان اس تمام تفصیل کے لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گشت پر مامور پولیس اہلکار نے موقع پر پہنچ کر ایکشن لیا، فائرنگ کے تبادلے میں ملزمان مارے گئے۔ لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن کے کچے کے علاقے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ 72 خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ حکومت کی سرنڈر پالیسی 2025 کے تحت شکارپور پولیس لائن میں یہ اہم تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ اب کسی قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی، سرنڈر کرنے والوں سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مکیش روپتا۔ شکارپور پولیس لائن، جہاں سندھ حکومت کی سرنڈر پالیسی کے تحت کچے کے علاقوں کے 72 ڈاکوؤں نے ریاست کریڈٹ تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور IG سندھ غلام نبی میمن کی موجودگی میں ڈاکوؤں نے جدید اسلحہ میز پر رکھ کر سرنڈر کیا۔ ہم ابھی آئے نا، وہ بھی آ جائیں، ہم جیسے گزار رہے زندگی اچھی، وہ بھی اچھی زندگی گزارے اپنے بچوں کے لیے۔ بہتر زندگی صحیح نئی زندگی مزو نہ ہو۔ دوستن کے اصل چاہوں تھا تو پانچ بچن جو بھی مستقبل صحیح کیو ہے، پانچو قومی جھیڑا بھی ختم کراयो۔ پہرے واری زندگی تو صحیح نہیں، ہاں زندگی شہر واری گزاریوں۔ باقی جو پوتے دوست ہیں میسج انہوں کے یہ جو ہوتا سردارن کے تو انہوں جو قومی جھیڑا وہ ختم کرن وہی سلنڈر تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ لوگ پرامن شہری بنے۔ سندھ حکومت کچے کے عوام کو نوکریاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ، بچوں کو تعلیم اور سڑکوں کی سہولیات فراہم کرے گی تاکہ وہ دوبارہ جرائم کی طرف نہ جائیں۔ ہم آپ کو اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی۔ کافی یہ سمجھتے ہیں کرمنل کہ ان کو جب سرنڈر کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی، ایسی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ کلیئر پالیسی ہے گورنمنٹ کی۔ کرمنلز کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، نہیں کریں گے ہماری ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس، ہماری رینجر
आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। जिसने गुलाम नबी मेमन का कहना था कि कच्चे के इलाकों में अमन अमान बेहतर हो रहा है, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाकों को क्लियर करना भी बाकी है। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने कहा कि खाली कराए गए कच्चे के इलाके में मुस्तकिल पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे ताकि अमन को मुस्तकिल बनाया जा सके। आगे मजीद डाकू जो सरेंडर करना चाहेंगे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। इसमें हमारा एक ही नुक्ता था कि नो फेवर, जो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करना है। कच्चे के इलाकों में 72 डाकुओं का सरेंडर करना अमन की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हुकूमत का दावा है कि ये अमल सिर्फ शुरुआत है, बाकी मुजरिम भी कानून के दायरे में आए। कैमरा टीम शान अबड़ो, शबीर खोसो और उसामा तलत के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, शिकारपुर। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नए पासपोर्ट की छपाई शुरू कर दी गई है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक फीचर की तब्दीली के अलावा पासपोर्ट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। अलबत्ता नए पासपोर्ट में वालिद के साथ वालिदा का नाम दर्ज करने का फैसला किया गया है। वीजा पेजेस में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारात प्रिंट की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू करने, लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने, सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया है। जबकि इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास में सूबे के हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने, सूबे को गैर कानूनी असलहा से पाक करने के लिए इक़दाम की रफ्तार तेज और सख्त करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल करने और हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमत पहुँचाने का भी फैसला किया गया। इजलास में वजाहत की गई कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं, किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं। इजलास में इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला किया गया, जबकि अवाम को हिदायत की गई कि गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना दें, वरना किराएदारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अवाम इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारीकीन वतन की इतला के लिए 15 पर कॉल करें। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर बात की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़रा अमीर मकाम सरदार यूसुफ, अतातार, राना मुबशर इकबाल, मुशीर वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह, अरकान पार्लियामेंट पीर साबिर शाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इख्तियार वली और सरदार मुश्ताक शामिल थे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि हुकूमत कारोबार के लिए बेहतर माहौल को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। SIFC के ज़ेर एहतमाम इजलास में मुल्क में कारोबार के फरोग और उसकी राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि सरमायाकारी और नमू के मौक़े खोलने के लिए पुरअज़्म है। मुसाबिकत और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात जरूरी हैं। इस्लाहात का अमल बरवक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अजहर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरका ने SIFC के नतीजा खेज किरदार को सराहा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। हमारे 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, क्योंकि अगर हमने उनको सही तरह टैकल नहीं किया तो 2047 की जो बात की गई है कि जब हम इंशाअल्लाह ताला बहसियत कौम 100 साल हमें गुजर जाएंगे, $3 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकती है। उसमें 2 हैं वजूहात जो हमें डिरेल कर सकती हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी स्टेबिलिटी हमें स्टॉक मार्केट में नजर आती है, उस तनासुब से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं स्टॉक मार्केट का सिर्फ जिक्र करूं तो मेरे लिए बड़ी एक
खुश आइन बात है कि उसमें 95,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैं कम इन, लेकिन लोग ये अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ इन एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्टेज, और उसमें वो जिक्र करते हैं कि दो चीज़ों का एक्चुअली इम्तजाज हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, कि एक तो ये है कि आप एक मैक्रो इकनॉमिक माशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, जो हमारी जियो पॉलिटिकल टेल विंड्स हैं, मैं तो उनको इसी तरह कहूँगा कि इम्प्रूव रिलेशनशिप with the US, at the same time a very constructive long-standing relationship with China, and then जो GCC के साथ हमारा है including the Saudi Accord. मैं अब इसको इस लिहाज से देखता हूँ कि अब मैं जितने भी डेलीगेट्स आते हैं खुलकर उनसे बात करता हूँ कि आपका जो सरमाया यहाँ महफूज है। ये मैं आज से साल पहले भी नहीं कह सकता था। अच्छा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि अगर कुछ मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं तो कुछ कंपनियां आ भी रही हैं। कुछ कंपनियां जा रही हैं तो पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा हो कुछ आ भी रही हैं। तो उसमें आपने देखा होगा एनर्जी सेक्टर में अरामको आई, वाफी आई, गनवर आया, डिजिटल सर्विसेज में अभी पार्को चली गई तो अरामको आ गई। ये एक थोड़ी सी नेचुरल एवोल्यूशन भी है जी, कि जो आपकी लोकल कंपनीज हैं दे आर बिकमिंग वेरी प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट एंड गिविंग देम द रन ऑफ मिल फॉर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर, जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 11वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सरहदी गुजरगाहों की बंदर से तिजारत, आमदोरफ्त और मुकामी मुआशी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। चमन में कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मी और वीजा पासपोर्ट ट्रैवलिंग के लिए ताहाल बंद है, जिसके बायस सरहद के दोनों अतराफ हजारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। सिर्फ चमन में 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी अपनी वापसी के मुंतजिर हैं। परेशान करे भाई, कोई जाने के लिए कोई तरीका नहीं है, रास्ते सारा जाम पड़ी है और लोगों से खर्चे मर्चे भी खत्म हो गया। गाड़ी में अपना देख बनाता है, गाड़ी में सोता है, रहायश भी गाड़ी में, हमारा सब कुछ गाड़ी में करता है। सारे दो एक तो चला गया घर पे, इसकी वजह से इधर खर्चा ज्यादा है। मैं होटल पे जा रहा है, उधर होटल पे रोटी खा रहा है, इधर होटल बंद है, इतना दूर है, रात तो चोर भी है, मुश्किल भी है। तोरखम बॉर्डर पर भी दो तरफा तजारत 11 दिन से बंद है। माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिनमें सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत लाखों रुपए का सामान फंस गया है। इसी तरह जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान, जबकि जिला कुर्रम में खरलाची सरहद भी बंद है। बॉर्डर सील होने से अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि रोजाना अफगानिस्तान जाकर मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूर भी शदीद मुतासिर हैं। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया के दौरे में फजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड से मुलाकात की। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर रोमानिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड से मुलाकात में मुश्तरका फजाई मशकों, तरबियत और ऑपरेशनल ताउन को मजीद इस्तवार करने पर तफसीली बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड ने भारतीय जारियत के खिलाफ हालिया कामयाबी में पाक फजाइया की पेशावराना महारत की तारीफ की। पेरिस के लूवर म्यूजियम से दिन दिहाड़े चोरी होने वाले शाही जेवरात की मालियत $102 मिलियन बताई गई है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 28 अरब रुपए से जायद बनती है। पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा सकी। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। पेरिस के दिल में फिल्मी अंदाज की चोरी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। मशहूर लोअर म्यूजियम में 4 नकाब पोश चोर क्रेन की मदद से अपोलो गैलरी की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और महज 7 मिनट में $102 मिलियन मालियत की शाही जेवरात ले उड़े। चोर अपने साथ ले गए मलका मैरी एमली और मलका होटन्स के कीमती ताज और नायाब बालियां, जिनकी कुल कीमत पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 28 अरब 86 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन फरार के दौरान एक ताज म्यूजियम के बाहर गिर गया और वही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक ये सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि फ्रांस की तारीख पर एक कारी ज़र्ब है। चोरों ने अपनी जैकेट, चंद जेवरात वहीं गिरा दिए। इधर पेरिस पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी हैं और लोअर म्यूजियम के सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।
अभी आपको बताएं, रावलपिंडी के थाना सिटी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आई है। 8 से 10 अफराद ने एक शहरी को बरहना करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। बाज अफराद मुसल्लह थे। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज शबीर डार से। शबीर, क्या मामला है ये? जी, ये थाना सिटी का इलाका गवाल मंडी है। यहाँ पर बासर अफराद ने एक शहरी पर तशद्दुद किया है और बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है इस शहरी को, और इस शहरी की शनाख्त हारिस के नाम से हुई है। 8 से 10 अफराद ने शहरी को नंगा करके सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया है। शहरी पर तशद्दुद की मुतादिद वीडियोज भी सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी को बरहना करके 8 से 10 अफराद जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और मुल्ज़मान के हाथों में आतिशी असला और दीगर जो डंडे हैं और असला वो भी देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को यहाँ पर जो गोदाम है, मुख्तलिफ किस्म के स्क्रैप के गोदाम है और प्लास्टिक के गोदाम है, यहाँ पर चूंकि आमदरफ्त ज्यादा होती थी, ये जो मुतासरा शहरी है ये इसी इलाके का रिहायशी है और इसने रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को शिकायत की थी कि यहाँ पर जो गोदाम है ये गैर कानूनी है। उसके बाद रावलपिंडी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपने अपडेट किया शबीर डार, शुक्रिया।